Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. sir. Tell others to join fast. Huh? We are starting. So आज हम we are starting projections of planes. ठीक है ना? So रिमोट तो होता ही नहीं है और आपको दिया था सर ने मेरे पास नहीं आया ना. Yes, projections of planes. So projection means we have to draw the front view, the top view, and the side view of an object, given the position of the object with respect to the reference plane. ठीक है, reference plane के respect में, whether it is a point, whether it is a line, or whether it is a plane, or whether it is a solid, उसकी position with respect to reference plane क्या है? So here, in projection of planes, what we have? We have plane figure. So we have a plane figure like this. This is a plane figure. Okay. So a plane is having some parameters such as the corner points, the edges, surface, and the imaginary lines, that is the diagonal. Or if it is a circular plane, then the center of the circle, and etc. So these are the various parameters or the properties of a plane figure. Okay. Now its position with respect to horizontal plane and vertical plane is defined, yeah, will be given. So क्या क्या positions होंगी? What all the positions? The position may be the direct inclination of this plane or indirect inclination of this plane. Direct inclination and indirect inclination. So inclination of what parameter? So inclination of surface or inclination of edge. That is, excuse me. So description of the plane figure and its position with HP and VP. These two will be our input, and we have to draw the projections, that is the front view, top view, and the side view. So description means whether it is a rectangular plane or it is a circular plane, it is a semicircular or pentagonal or hexagonal or rectangular or a square, etc. Okay, that is the description of the plane figure, किस type का है, and its position. So position with respect to HP and VP means मैंने अभी बोला था, just I said कि direct inclination and indirect inclination. So direct inclination means the main position is with respect to the surface. इस plane figure की surface की हम बात करते हैं. So surface is directly inclined to the reference plane or surface is indirectly inclined to the vertical plane. Sorry, to the reference planes. No, surface directly inclined to the reference plane means this is the surface of the plane figure. If this is inclined to the vertical plane, so it is mentioned that the surface is inclined to the vertical plane or horizontal plane. Now in case of indirect inclination, one of its edge of this plane figure is inclined with the horizontal plane, and
also inclined with the other plane. So the surface inclination is indirectly. So that is the indirect inclination. So this will be given, and then we have to draw this front view, top and side view. So let's first understand what are the various positions of this plane figure with respect to the horizontal plane and with respect to the vertical plane. So this is vertical plane and this is horizontal plane, the reference plane, and this is another case. Here the first case is when surface of the plane figure is parallel to the horizontal plane. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the first सर position. बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा It's okay, yaar. We have to maintain, है यस सर है ना? Because I am in office and there is a lot of noise. I cannot control. So please bear with me. But I am trying to speak louder so that my voice is audible and background noise will suppress. Okay, यस सर Yes, sir. Yes, sir. Babu. Okay, so in the first case, the surface parallel to horizontal plane and perpendicular to HP. Here the surface inclined to HP, and here one small side inclined to VP. Means this is the case. This is our plane. So the surface is parallel to horizontal plane. So this is the case. So this is a plane figure. This is a rectangle whose surface is parallel to this horizontal plane. This is clear now? How it is placed? How this plane is placed? Or you are having doubt? Is this position is clear to you or not? Yes, sir. यस सर Okay, so this is a plane figure. A rectangle plane is there. Its surface is parallel to the horizontal plane. Okay, so this is the plane. The rectangular plane figure is inclined with the horizontal plane. So this angle is theta, and its surface is perpendicular to vertical plane. Now, okay, the surface of this rectangular lamina or plane figure is inclined with horizontal plane and perpendicular to vertical plane. Here the surface is parallel to the horizontal plane and the surface is inclined to the vertical plane. Third case, here the edge is inclined with the vertical plane. The edge of this plane figure is inclined with the vertical plane. So front view and top view. So this is the front view. So in this case, that is when surface of the plane lamina or plane figure is parallel to the horizontal plane. Its front view is a line which is parallel to XY. This is XY. And the top view is a plane figure. This is the top view. And this top view is of true shape. टॉप व्यू जो बनेगा वो टू शेप का बनेगा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है प्लेन ऑब्जेक्ट ठीक है सो फ्रंट व्यू इज अ लाइन एंड टॉप व्यू इज अ प्लेन फिगर whose shape is equal whose shape is same as that of the plane figure ठीक है now here in this case second कि when this surface is inclined with the horizontal plane here the front view is a line but the line is inclined with the xy अब यहां पर xy से inclined होगी ये यहां पर ये xy के पैरेलल थी now here it is inclined to xy and top view is a plane figure so this is a plane figure so top view is a plane figure but this plane figure in the top view is not the true shape of the plane figure
this lamina, this rectangular lamina. This top view does not represent the true shape of this rectangular lamina. This is a projected shape. Okay, ये true shape के इसके बराबर नहीं होगा. Now here also we have the front view is a plane figure. Top view is also a plane figure. Here also the front view is not the true shape of this plane figure, and the top view is also not the true shape of the figure. Both front view and top view are projected views. Okay, projected shapes. So we'll not get true shape here, true shape of the object, neither in the front view nor in the top view. So this is the case where the plane figure or plane lamina is inclined to both the reference plane, the horizontal plane and the vertical plane. Therefore, we'll have a plane figure in the front view and a plane figure in the top view. Line view नहीं मिलेगा in front view and top view both. So this is our representation जो हमें बनाना है. This is ये इसका representation जो हम XY line बना के जब represent करते हैं. This is the case. Okay. ठीक है, this is clear. Yes, sir. Now, when this surface is parallel to the vertical plane and perpendicular to the horizontal plane, तब क्या change होगा? Then what will be the front view and the top view? If this is a vertical plane and this is horizontal plane, so this is the case. So in the front view में हमें rectangle मिलेगा, that is the true shape of the plane figure, and the top view will be a line. तब हमें ये top view मिलेगा और ये front view मिलेगा. और when the lamina is inclined to the vertical plane, ये vertical plane से inclined है lamina. This is the angle. तो top view में inclined line मिलेगी और front view projected होगा. So तब ये front view होगा और ये top view होगा. So how to solve the problems? So this is a procedure as per the PPT, which is I think this PPT is from the ND Bhatt book. So the procedure is कि how to reach this position. यहाँ पर कैसे हम reach करेंगे final position? Here it is mentioned कि the plane surface is inclined with the vertical plane and also inclined with the horizontal plane. So directly we cannot draw this. Okay? Because these are the projected dimensions. So how to reach here? So here is the procedure. Assume suitable conditions and draw front view and top view of initial position. So initial position, if the surface is inclined with the horizontal plane, so first we will draw this कि हम surface को horizontal plane के parallel लेंगे. ठीक है, we'll keep the surface parallel to horizontal plane. If the surface of this lamina is inclined to the horizontal plane, यदि horizontal plane से ये lamina horizontal plane से inclined है तो हम initial position में इसको parallel to लेंगे HP के, और यदि ये VP से inclined है तो हम VP के parallel लेंगे पहले. So we'll have this front view and this top view. Then we'll rotate the front view. हम फिर front view को rotate करेंगे. यहाँ से कितने डिग्री से रोटेट करेंगे फ्रंट व्यू को? जितने से दिया होगा. So if the surface is inclined at 30 degree, तो ये 30 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे. So we'll have this front view. Then we'll project the top view. यहाँ से टॉप व्यू के प्रोजेक्टर्स और यहाँ से पिछला वाला जो टॉप व्यू था इसके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स, उनके क्रॉस सेक्शन से इसको ड्रॉ करेंगे. And then we rotate that final top view.
So now consider surface inclination and draw the second front view and the top view. ठीक है, सो फर्स्ट फ्रंट व्यू बना, टॉप व्यू बना. यदि एचपी के साथ रोटेशन है तो फ्रंट व्यू को रोटेट किया, सेकेंड टॉप व्यू कंप्लीट किया. इफ वीपी से भी इंक्लाइंड है तो इस सेकेंड टॉप व्यू को हम रोटेट करेंगे और थर्ड जो है वो फ्रंट व्यू बना लेंगे, फ्रंट विंडो. एंड दीज आर द assumptions फॉर इनिशियल पोजीशन कि if in problem surface is inclined to the horizontal plane, assume it parallel to HP, or if surface is inclined to VP, assume it parallel to VP. ठीक है, तो सरफेस किस प्लेन से इंक्लाइंड, एचपी से या वीपी, सो उसके पैरेलल रख लो. Now if surface is assumed to parallel to VHP, its top view will show true shape, and if surface is assumed parallel to VP, its front view will show true shape. So hence begin with drawing the top view or the front view as the true shape. तो हमें कौन सा व्यू पहले बनाना है, because one of the view will be line view. ये तो line view front view में मिलेगा, टॉप व्यू में मिलेगा. तो हमें जिस व्यू में ट्रू शेप मिल रहा है उस व्यू को पहले ड्रॉ करना है एंड देन दूसरा व्यू बनाना है. So while drawing this true shape, keep one side or the edge which is making inclination perpendicular to XY line, similar to pair number A on previous page illustration. इसमें यदि पैरेलल सरफेस को हमने किया है एचपी के, तो वन ऑफ इट्स साइड से द स्मॉलर साइड इज इंक्लाइंड टू वीपी, ये स्मॉलर साइड वीपी से इंक्लाइंड है, तो ये वाली हमारी पोजीशन हो गई, और सरफेस एचपी से इंक्लाइंड है, तो हम इस पोजीशन में रखेंगे. Now complete the step 2 by making surface inclined to the respective plane and project its other view. अब यदि HP से इंक्लाइंड है तो हम HP से इंक्लिनेशन देंगे, यानी फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे, टॉप व्यू बना लेंगे. अब वर्टिकल प्लेन से इंक्लिनेशन चाहिए तो टॉप व्यू को रोटेट करेंगे और फ्रंट व्यू बना लेंगे. By making side inclined to the respective plane and project its other view. Here we have to give by default first step जो इंक्लिनेशन होगा that will be of surface preference, कि पहला इंक्लिनेशन सरफेस को देना है, फिर यदि उसकी कोई एज या साइड इंक्लाइंड है तो वो इंक्लिनेशन बाद में करना है. That will be the last step. First we have to incline surface and then we have to incline the line or the edge, whether it is the shortest edge or the longest edge. So this is the problem. अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं सिंपल सा, इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम, और समझ में आ जाएगा कि हमारी स्टेप्स क्या है, ये जो हमने लिखी है. नाउ द प्रॉब्लम इज दिस. So this is a problem कि a rectangle 30 mm, ये shortest is 30 mm हो गई, ये longest 50 mm की हो गई. So this is 50 and this is 30. Sides is resting on HP on one small side which is 30 degree inclined to the VP, while the surface of the plane makes 45 degree inclination with the HP. This surface is inclined with the HP 30 degree, और इसकी एक साइड ये VP से inclined है 30 degree पे, ये like this. This is the position, ये position है. This is the case. This is a rectangular lamina. This is 30 mm. This is 50 mm. Its surface is inclined with 30 degree with the HP. ये horizontal plane से 30 degree inclined है, और इसकी एक साइड स्मॉल साइड जो 30 mm वाली ये वाली, दिस साइड इज इंक्लाइंड विद द VP, ये VP के साथ में इंक्लाइंड है इस तरह से.
सो दिस इज द पोजिशन ऑफ द प्लेन, ये प्लेन की पोजिशन है इस तरह से. सो इन द फ्रंट व्यू यू हैव प्लेन फिगर एंड इन द टॉप व्यू यू आल्सो हैव प्लेन फिगर. ठीक है. सो इस पोजीशन पर हम कैसे जाएंगे, तो इसका रिवर्स करते हैं. फर्स्ट हम जो एज का इंक्लिनेशन है उसको कर देते हैं 0. सो ये वीपी से 0 हो गया एज का इंक्लिनेशन, मतलब एज इंक्लाइंड टू वीपी इज 90 डिग्री. अब ये भी एज, और सरफेस एचपी से इंक्लाइंड है तो इसको भी 0 कर दो, इस इंक्लिनेशन को 0. सो दिस इज द इनिशियल केस कि यदि हम रेक्टेंगुलर लेमना को इस तरह से रखते हैं कि इसकी सरफेस पैरेलल टू एचपी, ये इनिशियल पोजीशन हो गई. तो फ्रंट व्यू में एक लाइन बनी और टॉप व्यू में पूरा फिगर बनेगा रेक्टेंगल. ठीक है. अब सरफेस को पहले हम इंक्लाइन करते हैं, तो ये पोजीशन में गए, ये सरफेस इंक्लाइन हुई पहले. तो क्या चेंज हुआ, किस व्यू में क्या चेंज हो रहा है? फ्रंट व्यू में क्या चेंज हो रहा है? लाइन से प्लेन आ रही है कोई. देखो अभी के केस में यदि इस पोजीशन में है ना, तो इनिशियल फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या हो गया? इनिशियल फ्रंट व्यू एक लाइन हो गया, टॉप व्यू एक रेक्टेंगल हो गया जो कि इसका ट्रू शेप है. ठीक है. यस सर. अब हम सरफेस को पहले इंक्लाइन करेंगे, तो ये सरफेस को हमने इंक्लाइन किया, तो फ्रंट व्यू में क्या चेंज आया? सर फ्रंट व्यू में सिर्फ फ्रंट व्यू की लेंथ में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन विथ एक्स वाई वो हो जाएगा 30 डिग्री. ठीक है. फिर ये एज, नाउ जो एज वीपी से इंक्लाइंड है इनिशियली उसको परपेंडिकुलर रखना है वीपी के. ये परपेंडिकुलर हमने रखी है वीपी के. ठीक है. यदि हम इसको ऐसा भी रख सकते हैं इस तरह से ये, और सरफेस को ऐसे भी इंक्लाइन कर सकते हैं. सो दिस इज आल्सो कि सरफेस तो इंक्लाइंड है एचपी से, बट ये लॉन्गर एज वीपी से इंक्लाइंड होना है अगली बार. तो इसकी ट्रू लेंथ हमें फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में मिलना चाहिए. तो टॉप व्यू में देखेंगे तो इसकी एज प्रोजेक्टेड मिलेगी ये वाली, इसलिए हम इसको इस पोजीशन में नहीं रखेंगे, इसको हम रखेंगे इस पोजीशन में. ये एचपी से इंक्लाइन किया, अभी भी टॉप व्यू में देखोगे तो यही लेंथ हमें मिलेगी जो ट्रू लेंथ है. फिर इस टॉप व्यू को हम रोटेट कर देंगे इसे, तो ये एज वीपी से इंक्लाइंड हो जाएगी. ठीक है. और फाइनल हम ड्रॉ कर लेंगे. सो देखते हैं प्रोसीजर इसका. So problem is this. ठीक है. सो ये प्रॉब्लम है हमारा, इसको हमें सॉल्व करना है. स्टेप्स बताइए. सो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये स्टेप्स हैं. सरफेस इंक्लाइन टू विच प्लेन? सो एचपी. ओके. तो अजम्पशन फॉर इनिशियल पोजीशन इज कि पैरेलल टू एचपी. सो पैरेलल टू एचपी. सो विच व्यू विल शो द ट्रू शेप? द टॉप व्यू. ठीक है. तो हम टॉप व्यू से स्टार्ट करेंगे. एंड विच साइड विल बी वर्टिकल? वन स्मॉल साइड, बिकॉज दैट इज इंक्लाइंड टू द वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन के साथ में जो साइड इंक्लाइंड है उसको हम परपेंडिकुलर रखेंगे इनिशियल पोजीशन. तो ये हमने स्टार्ट किया, ये एक्स वाई लाइन हमारी, ये हमने किस व्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं? जिस व्यू में ट्रू शेप मिलेगा. सो ट्रू शेप हमें मिल रहा है टॉप व्यू में, तो हम टॉप व्यू से स्टार्ट किए. ये टॉप व्यू से स्टार्ट किए. सो ये टॉप व्यू में रेक्टेंगल बना. दिस इज 30 एंड दिस इज 50. 30 बाई 50. फ्रंट व्यू बनाया. इसके पॉइंट्स के नाम दे दो बिल्कुल, ए बी सी एंड डी. ठीक है. नाउ प्रोजेक्ट फ्रंट व्यू. ये हमने प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए टॉप व्यू से. ये फ्रंट व्यू की लेंथ फिक्स हो गई. ये बनाई हमने फ्रंट व्यू, लाइन रहा. तो ये ए डैश, दिस पॉइंट इज ए डैश एज वेल एज बी डैश, कोइंसिडेंट होंगे ना.
सो ये ए डैश बी डैश, यहां पर ये पॉइंट कौन से होंगे, सी डैश डी डैश, सो सी डैश डी डैश पॉइंट। सो दिस इज आवर फर्स्ट फ्रंट व्यू एंड फर्स्ट टॉप। ठीक है, नाउ अब सरफेस को इंक्लाइन करना है। सरफेस को इंक्लाइन करना है तो क्या चेंज होगा किस व्यू में, फ्रंट व्यू को रोटेट कर दो। तो फ्रंट व्यू को रोटेट इस तरफ से भी कर सकते हैं, मतलब सीडी को यहीं रख हिंच करके एबी को ऊपर की तरफ मूव करें, या एबी को हिंच कर लें इस एज को और इसको यूं रोटेट करें। ठीक है, सो ये अब इस एबी पॉइंट को हमने एक्स वाई पे लिया। द रीजन इज, इसने क्या बोला था कि रेक्टेंगल 30 mm एंड 50 mm साइड्स इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन स्मॉल साइड। तो एक स्मॉल साइड इसकी एचपी में रेस्ट कर रही है। ठीक है, वन ऑफ इट्स स्मॉल साइज इज रेस्टिंग इन द एचपी, तो ये वाली साइड एचपी में रखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी एचपी में नहीं है तो हम इसको क्या नीचे लेके आ गए, यहाँ पर हमने पूरा प्लेन ही मान लो एचपी में रख दिया यहाँ पर, तो इसका फ्रंट व्यू ये बना। और यहां से अब हमने इसको हिंज करते हुए इसको रोटेट कर दिया, तो ये फ्रंट व्यू हमारा रोटेट हो गया। सरफेस 45 डिग्री इंक्लाइंड है तो ये 45 डिग्री का इंक्लिनेशन हो गया, ये ए डैश बी डैश हो गया, और यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा सी डैश डी डैश हो गया। ये लेंथ फ्रंट व्यू की यही है जो यहाँ पर है, सेम, बस इसको हम रोटेट कर रहे हैं। नाउ विल प्रोजेक्ट द टॉप व्यू। सो टॉप व्यू की लेंथ फिक्स हो गई यहाँ से, ये टॉप व्यू का एक प्रोजेक्टर जिस पर टॉप व्यू का नया पॉइंट होगा ए बी, इसके ऊपर होगा सी और डी, बट कहां पर होगा यहाँ पर लोकेशन। सो उसकी वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई है इन पॉइंट्स की, ए बी सी डी की वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है। कहां से चेंज हुई है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन से चेंज हुई है। तो वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस इस व्यू में ऑब्टेंड है हमारे पास में, यही रहेगी। तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। तो यहां पर ये पॉइंट आएगा हमारा न्यू A1, दिस इज B1, दिस इज C1 एंड दिस इज D1। ये A1 B1 C1 और ये D1। तो A1 कौन सा पॉइंट है, ये जो A डैश यहां से आ रहा है प्रोजेक्टर ये, और ये A वाला जो प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर यहां से, दिस इज A1 B1 C1 और D, ये हो गया टॉप व्यू। ना यहाँ पे अंतर देख लो कि ये प्लेन एचपी से इंक्लाइंड है तो इसका टॉप व्यू का शेप देखो, जो कि ये था प्रोजेक्ट होके ये ऐसा हो गया। नाउ हाफ प्रॉब्लम हो गया कि सरफेस ऑफ द प्लेन मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री सरफेस इंक्लाइंड है, और इसकी साइड भी इंक्लाइंड है वीपी से। वन ऑफ इट्स स्मॉलर साइड, दिस इज द स्मॉलर साइड A1 B1 और दिस इज द स्मॉलर साइड C1 D1, ये दो साइड से स्मॉलर। सो इसमें से कौन सी वाली साइड इंक्लाइंड है वीपी से, द साइड विच इज इन द एचपी। तो एचपी में कौन सी साइड है, फ्रंट व्यू से हम पता लग जाएगा, जिस साइड का फ्रंट व्यू एक्स वाई पर होगा वो एचपी में होगी। सो हियर इट इज A dash B dash is on the xy. A dash B dash is representing this A1 B1. So this is representing a side. So this is the smaller side which is in the HP. Now this is inclined to VP. अब ये VP से inclined है, ये करा और ये करा, ये VP से inclined है, तो इसको ऐसे घुमा दो या ऐसे घुमा दो। You can rotate it like this or you can rotate it like this, VP से। Yes, yes. ठीक है, सो इसको हम इस टॉप व्यू को हम रोटेट कर देंगे, विल रोटेट दिस टॉप व्यू। टॉप व्यू का शेप चेंज नहीं होगा, बस टॉप व्यू रोटेट हो जाएगा। रिमेंबर, टॉप व्यू का शेप विल नॉट चेंज, ओनली इट रोटेशन टेक्स प्लेस, ओनली द रोटेशन ऑफ टॉप व्यू टेक्स प्लेस। सो इस टॉप व्यू का रोटेशन होगा। सो विल रोटेट दिस टॉप व्यू। सो दिस इज द इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री की लाइन ये रही एक्स वाई से, और इस लाइन के ऊपर हमने ये A1 B1 मार्क किया, ये A1 ये B1,
मतलब इस टॉप व्यू को वी विल रिप्रोड्यूस दिस टॉप व्यू हियर. सो दिस पॉइंट इज A1, दिस पॉइंट इज B1, और फिर B1 से ये C1 वाली लाइन, B1 टू C1, एंड देन D1 टू C1, ये C1, एंड देन सॉरी A1 टू D1. सो दिस A1 टू ये D1 लाइन बन गई, एंड D1 टू दिस. मतलब यही वाला फिगर हमने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया उतने एंगल पे. सो दिस इज आवर न्यू फाइनल टॉप व्यू. अब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे फाइनली. नाउ वी विल ड्रा द फ्रंट व्यू. सो फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करना है? A1 से प्रोजेक्टर, B1 से प्रोजेक्टर, C1 से प्रोजेक्टर, D1 से प्रोजेक्टर. एनी क्वेश्चन? सर ये फिर से बता दीजिए ना सर, ये जो बनाया अभी लास्ट वाला. बता रहा हूँ हाँ. सो A1 से प्रोजेक्टर ये रहा, B1 से प्रोजेक्टर ये रहा, C1 से प्रोजेक्टर ये रहा, D1 से प्रोजेक्टर ये रहा. नाउ यहां पर जो इंक्लिनेशन हुआ दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन से इन पॉइंट्स का कोई रिलेशन चेंज नहीं हुआ. सो वो यहां से मिल जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है इसकी सरफेस. यहां से इसको रोटेट ये किया, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर इसका और इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर. तो A1 डैश कहां होगा, B1 डैश कहां होगा, C1 डैश कहां होगा, D1 डैश कहां होगा? सो ये रहा A1 का प्रोजेक्टर, दिस इज योर A1 प्रोजेक्टर, एंड दिस इज द प्रोजेक्टर फ्रॉम A डैश. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज A1 डैश, this is B1 dash. Similarly, this is C1 dash, and then this is D1 dash. So join this. We'll join this. So this is the final front view and the final top view. So this is the final front view and the final top view. Now we can draw its side view. हम साइड व्यू भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम. मैं एक बार और रिपीट करता हूं कैसे सॉल्व करना है. ये प्रॉब्लम. So there is a rectangle 30 mm side and 50 mm length. Sides is resting on HP on one of small side. So this is the small side one and this is the other small side. कोई भी एक साइड HP में है, HP में, which is 30 degree inclined to the VP. Now this side which is in the HP, this is inclined to 30 degree with the VP. VP is a 30 degree inclined. While the surface of the plane makes 45 degree inclination with the HP. जबकि surface 45 degree inclined है with HP. तो हम कैसे सॉल्व करना है?
द स्टेप इज कि सरफेस जिस प्लेन से इंक्लाइंड है उसके पैरेलल रखना है। तो सिंस हियर द सरफेस इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल रख रहे हैं। सो दिस इज द पोजीशन। ये भी है, दिस इज आल्सो द सेम पोजीशन, दिस इज आल्सो द सेम पोजीशन, दिस इज आल्सो द सेम पोजीशन। हॉरिजॉन्टल बोला ना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल, तो ये पैरेलल की है। तो सरफेस तो हॉरिजॉन्टल से पैरेलल हो गई, लेकिन साइड, ये जो लॉन्गर साइड है या जो स्मॉलर साइड है, इसको कैसे रखना है? तो सिंस इट्स वन ऑफ द स्मॉलर साइड इज इंक्लाइन टू द वीपी, तो उस साइड को हमें वीपी के परपेंडिकुलर रखना है। सरफेस को पैरेलल रखना है, कोई एज या साइड इंक्लाइंड है जिस प्लेन से, तो उसके परपेंडिकुलर रखना है। तो अभी ये वाली एज वीपी से परपेंडिकुलर रखना है, क्योंकि ये वीपी से इंक्लाइंड है। तो इस पोजीशन में रखना है। ये हमारा हो गया इनिशियल फ्रंट व्यू टॉप व्यू के लिए पोजीशन। ठीक है, फिर पहले सरफेस को इंक्लाइन करना है, तो हम ये सरफेस को इंक्लाइन करेंगे। दिस इज द सरफेस इंक्लिनेशन फर्स्ट, एंड देन एज इंक्लिनेशन, ये एज को अब इंक्लाइन करेंगे। दिस इज द पोजीशन। ठीक है, तो देखें क्या क्या चेंज होगा। तो पहले हमने सरफेस को पैरेलल रखा एचपी से, और जो साइड वीपी से इंक्लाइन थी उसको एक्स वाई से परपेंडिकुलर, या वीपी से परपेंडिकुलर, ये एक्स वाई से परपेंडिकुलर है। टॉप व्यू पहले बनाएंगे क्योंकि इसमें ट्रू शेप मिलेगा। ट्रू शेप जिस व्यू में मिलेगा वो पहले बनाना है। तो ये रहा, ये बना दिया। ठीक है, देन प्रोजेक्ट द फ्रंट, हम प्रोजेक्ट फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट करते हैं। सो दिस इज अवर फ्रंट व्यू। ठीक है, नाउ इसकी सरफेस को इंक्लाइन करना है एचपी से। जब इसकी सरफेस को हम एचपी से इंक्लाइन करेंगे ना ऐसा, तो इसकी जो स्मॉलर साइड है वो हवा में आ जाएगी, जबकि हमें एक साइड, ये कराई दिया हमने, जबकि हमें एक साइड एचपी में रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एचपी में ले जाएंगे, एचपी में, और फिर इंक्लाइन करेंगे। यार ये बहुत कम कर रहे हैं यार। तो ये फर्स्ट फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू। ठीक है, नाउ सरफेस इंक्लिनेशन देते हैं, साथ में ये भी कि जो एज ये है ए बी, ये एचपी में ही रहे, तो इसका फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पे आएगा। सो हमने इसको इंक्लाइन किया सरफेस को, कीपिंग दिस ए बी इन द एक्स वाई। सो ये एचपी में हुआ। सो दिस इज ए डैश बी डैश एंड दिस इज सी डैश डी डैश। नाउ विल कंस्ट्रक्ट न्यू टॉप व्यू, क्योंकि टॉप व्यू का शेप चेंज हो गया। सो this is the projection for the point A1 and B1. This is the projector for the point C and D, C1 and D1. Now सिर्फ HP से इंक्लाइन हुआ है ये,
वीपी से इसका कोई रिलेशन चेंज नहीं हुआ, जितनी दूरी पर ए पहले था उतनी पे ही अभी है, जितनी दूरी पे बी पहले था उतनी पे ही अभी है, सी और डी भी उतनी पे अभी है, सिर्फ ये एचपी से ओरिएंट हुआ है। तो पहले वाले टॉप व्यू से हम इसकी डिस्टेंसेस ले लेंगे। तो ये हमने लिया, देन वी मार्क दिस पॉइंट A1, दिस इज B1, दिस इज C1 एंड दिस इज D1 एंड कंप्लीट दिस टॉप व्यू। ठीक है, नाउ ये जो टॉप व्यू है, अब ये एज A1 B1 ये VP से इंक्लाइंड है, तो ये टॉप व्यू में XY के परपेंडिकुलर तो नहीं आएगी, इंक्लाइंड आना चाहिए। तो इस एज के साथ में, सिंस दिस एज इज लाइंग ऑन दिस प्लेन फिगर की एक पार्ट है, तो पूरा प्लेन फिगर रोटेट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन फिगर को रोटेट कर देंगे, इस नए वाले टॉप व्यू को रोटेट करेंगे A1 B1 C1 D1। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की 30 डिग्री पे, इस लाइन के ऊपर A1 और B1 पॉइंट आएगा। तो हम एक आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट ये चूज कर लेंगे कि ये हमने A1 चूज किया, तो यहां पर हम B1 पॉइंट मार्क कर लेंगे, कितनी डिस्टेंस पे, यहां से लेके जितनी पे ये A1 B1 है, B1 ये A1 से इतनी दूर है ना, यहीं से हम लेंगे डिस्टेंस और यहाँ पे मार्क करेंगे, तो ये B1 पॉइंट मार्क हो जाएगा। अभी B1 से 90 डिग्री पे लाइन है B1 C1, और A1 से भी 90 डिग्री पे लाइन है C1 A1 D1। तो यहाँ से हमने 90 डिग्री पे लाइन बनाई A1 D1, और यहाँ से लाइन बनाई B1 C1। तो हमें ये दोनों पॉइंट C1 और D1 लोकेट होगा, हम इन दोनों को भी जोड़ दें, ये टॉप ही रोटेट हो गया। ठीक है, अब इसको फ्रंट व्यू में लेके आना है कि फ्रंट व्यू क्या होगा, तो हम यहाँ से प्रोजेक्टर्स बना लेंगे टॉप व्यू से। ठीक है, ये टॉप व्यू से प्रोजेक्टर्स बन गए फ्रंट व्यू के लिए, मतलब फ्रंट व्यू इस लाइन पे आएगा बी का, B1 का, A1 का यहाँ आएगा, C1 का यहाँ आएगा, B1 का यहाँ आएगा। सर ये तो A1 और B1, तो ये इधर वाले A1 B1 के प्रोजेक्शन पे लाइंस आनी चाहिए ना, तो ये रही तो ना, ये AB XY पर है, क्योंकि ये एज XY पर है। ठीक नहीं, है, तो ये थर्ड वाला जो बनाया है आपने, स्लैंट हुआ है ना, ये इंक्लाइंड हुआ ये है, रहा ना A1, ये यस A1 सर। तो सर ये वाला तो इधर के प्रोजेक्शन पे आना चाहिए ना, ये तो किधर के, टेढ़ा हो गया। देखो ये वाला A1 है ना, तो ये A1 का प्रोजेक्टर। ठीक है, ये B1 है ना, हमने इसको ऐसे रोटेट किया, सर ये वो इंक्लाइन बोल किया, रहे हैं तो ऐसे B1 रोटेट B1 मैच करना चाहिए सर, वो B1 सेकंड फिगर के B1 और थर्ड फिगर के B1। ना 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 ना, ये मैच नहीं करेगा कि ये A1 की लाइन में आप चाहते हो कि ये A1 हो। यस सर। तो यू कैन डू दिस, वो कोई इशू नहीं है, आप इसको यहाँ से टर्न रोटेट कर दो, आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट कर रहे हो ना, अल्टीमेटली यू हैव टू मेक दिस A1 B1 30 डिग्री विद XY। ये ऐसा है ना सर, जैसे A1 को हिंज कर दिया और 30 डिग्री में रोटेट कर दिया। यस, अब आप A1 को हिंज कर दो ये और तो घुमा आ दो, गया। A1 के अबाउट रोटेट कर दो, आप इसको A1 के अबाउट रोटेट कर दो इसको। नहीं सर, मतलब मेरा बोलने का मतलब था कि जैसे ये A1 और B1 है, तो वो तो ये A1 और B1 के प्रोजेक्शन पे आना चाहिए ना, मतलब 30 डिग्री अपन ने बनाया, उसके बाद जो इसके प्रोजेक्शन बनाएंगे, उसके बाद जो उससे इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट्स होंगे ना A1 और B1। टॉप व्यू में ये सर, ये थर्ड वाला, हाँ टॉप। ये थर्ड, देखो ये क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है ना, दिस इज रोटेटिंग, इसको हमने रोटेट किया है, A1 B1 को 30 डिग्री से इंक्लाइन किया XY से बस। तो ये थोड़ी होएगा कि यहाँ पर इसका जो प्रोजेक्शन इसी पे आए, इस पे आ ही नहीं सकता ना, इस फिगर को रोटेट करोगे ना जब आप, तो ये है 30 डिग्री। सो कंप्लीट। ठीक है, सब तो पर हम A1 पेपर पे बनाएंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये इतनी दूर है? अरे हम बना लेंगे, अब चिंता मत करो, यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फिर हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जब करेंगे ना शीट में ठीक है, डोंट वरी, बट जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस क्या है। ठीक है, सो दिस इज न्यू A1 dash B1 dash C1 dash and D1 dash and join this, complete this figure, means surface inclination पहले देना है, एज इंक्लिनेशन बाद में देना है, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू, नाउ कंप्लीट द साइड व्यू। ठीक है, नाउ विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स, सो आई एम गिविंग यू ब्रेक दे रहा हूं मैं, एक हाफ एन आवर का। ठीक है, ड्यू टू सम वर्क,
विल रिकनेक्ट एक 330। ठीक है, आप इसी प्रॉब्लम को करके देखो, यू जस्ट डू दिस प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, ये किसका वो ले लो स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्लिक कर लो फटाफट से कोई भी एक और आपके ग्रुप में सर्कुलेट कर दो उसको, और इसको सॉल्व करो। मैं जब हम 330 पे कनेक्ट होंगे ना, तब हम इसको देखूंगा मैं। ठीक है, ले लिया, यस सर, ले लिया। स्क्रीनशॉट लिया। यस सर। यस सर। ठीक है, सो मैं कनेक्ट होता हूँ 330 पे अगेन।